Good morning, students. Students, I am here today to discuss a new concept, and the concept is of blood vessels. Okay, blood vessels are the third most important characteristic features or third important component of your blood circulatory system. Along with the blood, heart, the blood vessel is very important. Now, what are blood vessels? Initially, I want to tell you that blood vessels are the kind of pipelines थ्रू विच ब्लड फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी। यानी ये वो पाइपलाइंस हैं जिनसे होकर के ब्लड बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। फॉर एग्जांपल, वाटर इज़ रिक्वायर्ड इन योर होम, इट कम्स फ्रॉम द म्यूनसिपैलिटी टैंक थ्रू पाइपलाइंस। सो सिमिलर काइंड ऑफ पाइपलाइंस आर ब्लड वेसल्स, ठीक है, विच आर कैरिंग ब्लड इनसाइड इट। ठीक है, नाउ there are three different types of blood vessels are present in our body, and what are these? Today we will discuss about these blood vessels. Now there are three types of blood vessels of different sizes which involve circulation of blood. And what are these three different types of blood vessels? The first ones are called arteries, second ones are called as veins, and the third ones are called as capillaries. Is it clear? Now in detail, now we are going to discuss about them. And one more thing before starting it, since in our body the blood flows into these pipelines or in these blood vessels, so that's why our circulatory system is also referred as closed circulatory system. तो ऐसा circulatory system जिसमें blood vessels के अंदर flow करता है, इसके तरह के blood circulatory system को closed circulatory system भी बोला जाता है. Now what are these three different types of blood vessels? Arteries, veins and capillaries. Now today we are going to discuss them in detail. Now what are arteries? Arteries are wide and thick elastic walled vessels that carry oxygenated blood from heart to the different organs of the body. ठीक है, यानी arteries एक तरह से बहुत wide, thick, elastic wall वाली blood vessels हैं जो oxygenated blood को क्या करती हैं, कैरी करने का काम करती हैं. Is it clear? Now in detail I have a table. In that particular tabular form I will explain the function as well as the differences between all these three blood vessels. ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बट देयर इज़ वन एक्सेप्शन इज़ दैट पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट के राइट वेंट्रिकल से जाती है और लंग्स तक पहुंचती है, वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है. Pulmonary artery always carries deoxygenated blood, while generally the arteries carry oxygenated blood. Similarly जो veins हैं, veins are thin walled. veins जो होती हैं thin walled होती हैं, इनकी जो wall होती है बनाने वाली वो thin होती है, and having valves that carry deoxygenated blood from different organs to the heart. वहीं veins जो हैं वो thin walled होती हैं और इनके पास valve होते हैं. Now what is the requirement of the valve? I am telling you that. देखो, हार्ट से आर्टरीज ब्लड लेके जा रही हैं. अब हार्ट तो एक ऑटोमेटिक पंप है जो ब्लड को प्रेशर कर रहा है, कहीं भी भेज सकता है. ठीक है, तो ब्लड को इजीली कैरी करती हैं. लेकिन अब देखिए, जो वेन्स हैं ये तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक से ब्लड को कैरी करके हार्ट तक ला रही हैं. तो अब देखो, पैर से अगर ब्लड हार्ट तक आना है तो द ब्लड शुड हैव टू कम अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो अब उसमें प्रेशर भी तो रिक्वायर्ड होगा. वो प्रेशर कहाँ से आएगा? तो इसमें वाल्व होते हैं. ये वाल्व क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं. क्लोज होते हैं तो ब्लड का बैक फ्लो जो होता है वो रुक जाता है और हार्ट में इन वेसल्स में ब्लड ऊपर की ओर चढ़ता चला जाता है और एक टेम्परेरी प्रेशर भी जनरेट करते हैं. ठीक है, तीसरी होती हैं कैपिलरीज. ना, ये कैपिलरीज क्या होती हैं? और अच्छा, हाँ, कैपिलरीज को बताने से पहले आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन द वेन्स जो होती हैं जनरली डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बट देयर इज़ वन एक्सेप्शन. जो पल्मोनरी वेन है आपकी, ये लंग से हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके आती है. तो एक चीज़ आप ध्यान देना, आर्टरीज हमेशा हार्ट से ब्लड को लेकर के जाएंगी, वहीं वेन्स हमेशा हार्ट की ओर ब्लड लेकर के आएंगी. ठीक है, मोस्टली जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी विच इज़ कैरिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स. और वेन्स जो है मोस्टली क्या करती हैं, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. और देयर इज़ वन एक्सेप्शन इज पल्मोनरी वेन विच इज़ कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट. ठीक है, और मेजर जो आर्टरी है उसे एओर्टा बोलते हैं. यू नो वेरी वेल दैट, जो हार्ट से निकलती है. और जो मेजर आपकी वेन्स होती है उन्हें वेना कावा बोलते हैं. यू नो वेरी वेल दैट. ठीक है, नाउ द थर्ड वंस आर कैपिलरीज. नाउ कैपिलरीज, what are capillaries? I am going to tell you that the artery divides into smaller vessels on reaching into the organ or tissue
which brings blood in contact with all individual cells. These smallest vessels, which have one cell thick wall and are called capillaries. These walls are permeable so that water and dissolved substances pass in and out, exchanging of oxygen, carbon dioxide, dissolved nutrient and excretory products with the tissues. Now, अब देखिए, now in very simple words I am going to explain you. Now the arteries are carrying oxygenated blood. now अब आर्टरीज जो है हार्ट से एओटा निकली, एओटा डिवाइड हुई, आर्टरीज में बटी, आर्टरीज आर्ट्रियोल्स में बटी और आर्ट्रियोल्स आपकी बेसिकली जो है किसी टिश्यू या किसी सेल के पास पहुंचती हैं. तो आर्टरीज अब क्या होती है, बहुत महीन, बहुत फाइन, वन सेल थिक वॉल के बराबर थिक आपकी जो बहुत ही फाइन आपकी ट्यूब्स में कन्वर्ट होती है. दीज आर कॉल्ड कैपिलरीज. ये कैपिलरीज क्या करेंगी, किसी टिश्यू को सराउंड कर लेंगी. अब ये जो टिश्यू होती है बहुत ही इनकी फाइन क्या होती है, सेल वॉल होती है, तो इजीली परमेबल होती है. ये इजीली जो थिंग्स हैं इनको परमेबिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि O2 है, CO2 है, डिजॉल्व न्यूट्रिएंट है, इजीली सेल्स के पास पहुंच जाएं या सेल्स ने जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाया है उन्हें दोबारा ये कैपिलरीज में छोड़ेंगी और कैपिलरी ने वेन्स के पास छोड़ देंगी. इज इट क्लियर? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. नाउ इन दिस टेबल वी कैन डिफ्रेंशिएट दीज ऑफ ऑल ऑफ दीज. सबसे पहले बात करें फंक्शंस की. आर्टरीज कैरीज ऑलवेज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इनटू हाई प्रेशर. ठीक है, वहीं कैपिलरी जो है सप्लाई ऑल सेल्स विद देयर रिक्वायरमेंट एंड टेक द वेस्ट प्रोडक्ट. तो सेल्स को जो रिक्वायरमेंट है वो भी देंगी और जो वेस्ट बन रही है सेल्स में वो भी ब्लड वेसल्स तक पहुंचाएंगी. ठीक है, ये ब्लड वेसल्स और सेल्स के बीच में इंटरमीडिएट का काम करती हैं, वी कैन से दैट. थर्ड, वेन्स रिटर्न ब्लड टू द हार्ट इन लो प्रेशर. वेन्स जो करती हैं वो हार्ट को वापस ब्लड लेकर के आती हैं. ठीक है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ वॉल. ठीक है, आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर होगा, सीधी सी बात है, तो इनकी वॉल क्या होंगी, थिक होंगी, कंटेन मसल्स, इलास्टिक फाइबर एंड फाइब्रस टिश्यू. कैपिलरीज की जो वॉल होंगी वेरी थिन होंगी, ओनली वन सेल वॉल थिक होती है. वेन्स की जो सेल वॉल होगी वेरी थिन होगी, मेनली फाइब्रस होगी एंड इट विल ऑल्सो मेड अप ऑफ लेस मसल्स. वहाँ पे आपने देखा था ज़्यादा मसल्स होती हैं आपकी आर्टरीज में, इसमें लेस मसल्स होती हैं और इलास्टिक टिश्यू उसमें प्रेजेंट होता है. ठीक है, बट इट इज़ लेस देन आर्टरीज. नाउ ल्यूमेन. ल्यूमेन के बाद है कैविटी. जो इनके अंदर की कैविटी होती है, आर्टरीज के अंदर की कैविटी जो है, स्पेस जो है, ठीक है, नैरो होता है. वेरीज विद द हार्ट बीट, इंक्रीज एज द पल्स ऑफ ब्लड प्रेशर. अब ये वेरिएबल होता है जनरली. नैरो वैसे तो नैरो होती है लेकिन प्रेशर हाई होगा तो ये आपकी ज़्यादा हो जाएगी. कैपिलरीज तो बहुत ही महीन है, देखो कैपिलरी ट्यूब ही आपने देखी होगी, बहुत ही महीन होती है, वेरी नैरो होता है. और वेन्स में जो ल्यूमेन होती है हाई वाइड होती है. अगला वाल्व. आर्टरीज में वाल्व प्रेजेंट होते हैं, नहीं होते हैं, यानी कि आर्टरीज में वाल्व नहीं होते हैं, सीधी सी बात है. कैपिलरीज में भी वाल्व नहीं होते हैं, बट वाल्व होते हैं किसमें, केवल और केवल वेन्स में होते हैं. और क्यों होते हैं? टू prevent backflow of blood. Now, how the structure fits function. Strength and elasticity needs to withstand the pulsing of the blood, prevents bursting and maintaining the pressure wave. तो देखो इलास्टिसिटी है, थिक सेल वॉल है, क्यों? क्योंकि जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए ये मेंटेन कर, ये उसी हिसाब से ये क्या होती हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है सूटेबल होता है. नाउ हेल्प्स टू मेंटेन हाई ब्लड प्रेशर, प्रिवेंटिंग द ब्लड फ्लोइंग ऑफ द बैक फ्लो, एज आई ऑलरेडी मैंशन. ठीक है, हेयर हाउ स्ट्रक्चर फिट्स इन केस ऑफ द कैपिलरीज. नो नीड फॉर द स्ट्रॉन्ग वॉल्स एज मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रेशर हैज़ बीन लॉस्ट. थिन वॉल्स ऑफ द नैरो ल्यूमन ब्रिंग blood into close contact with the body tissue, allowing diffusion of the materials between capillaries and surrounding tissue. ठीक है, सो वाइट ब्लड सेल्स कैन स्क्वीज बिटवीन द सेल्स ऑफ द वॉल. तो ये इसकी जो सेल वॉल होती है काफ़ी थिन होती है, और थिन होने के पीछे रीजन ये है कि इजीली जो डिफ्यूजिबल हो, इजीली परमेबिलिटी प्रोवाइड करे, ताकि RBC है, WBC है, न्यूट्रिएंट है, O2 है, CO2 है, इजीली परमेबिलिटी मिल जाए. वहीं लास्ट में वेन्स की बात करें, नो नीड फॉर द स्ट्रॉन्ग वॉल, क्योंकि प्रेशर ही नहीं है, एज मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रेशर हैज़ बीन लॉस्ट. वाइड ल्यूमेन ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लड फ्लो. अब चौड़ी सी अगर ल्यूमेन होगी तो इजीली ब्लड फ्लो उसके अंदर करेगा. तो आई थिंक you are capable enough to differentiate what are the arteries, what are veins and what are capillaries. So I think this is enough for today. ठीक है, revise it, try to make this table in your copy. ठीक है, and try to learn it. If still you have any query you can ask me. ठीक है, till then thank you and bye bye.